Good morning all. Today I Ritu Agarwal for SST. Today we will discuss a very important topic, that is Mughal Empire. It has a very significant role in the medieval Indian history, है ना. Lastly we talk about the last videos in Delhi Sultanate. Today this is very interesting topic, Mughal Emperor. Before I start this chapter, first I have to make a recall of the two things which is required for this video. ठीक है. Firstly, when we start with this 7th class history, that history started from the 750. I already told 750 से लेके 857 तक का जो period है, that period counted in the medieval history. In that, today we will talk about the 750. We talk 1000 in the first chapter. In that we talk about the three dynasties. Rajput dynasty, Pala dynasty and Gujjar and Pratihar dynasty. That was ended by the 1000. In the 1000 year to 1206. These years, in this we already talk in the Delhi Sultanate. In this period, the rural were the Rajput rulers. In that we talk about the Tomar Rajputs and the Chauhan Rajputs, है ना. In that, in the time, जो outsiders थे, that also coming in India, for invaded India, like Muhammad Ghaznavi and Mauryan Ghori, है ना. If we will talk about the 1191 Tarain का first war, in that जो Muhammad Ghori था, he defeated by the Prithviraj Chauhan, and after the next year 1192 he defeated the Prithviraj Chauhan and he entered the Delhi Sultanate, है ना. And then he left here and sent his one slave. अपने एक slave को छोड़कर वो यहाँ से चला गया, and that slave have established the new dynasty in 1206, slave dynasty, in which we already talk, है ना. slave dynasty के बाद में हमने बात की थी खिलजी dynasty की. Then we talk about the Alauddin Khilji. After that we talk about the Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty, है ना. So that was already completed by me in the last video of Delhi Sultanate. So today we will talk about the 1526. 1526 के आगे की बात हम आज के वीडियो में करेंगे, ठीक है. In that 1526 में आपको पता है that was the ruler, that time the ruler was Ibrahim Lodi, है ना. 1526 में Ibrahim Lodi was the king of the Lodi was the king of Delhi, है ना. दिल्ली का राजा था. एंड जो आउटसाइडर था कौन, बाबर, he came in India and he defeated Ibrahim Lodi and captured the Delhi and he established a new empire. That empire is known as the मुगल एम्पायर. तो दैट मुगल एम्पायर की जो हिस्ट्री है हमारे यहाँ पर कब से शुरू होती है, 1526, 1526 से स्टार्ट होती है, ठीक है. अब दिस वाज द हिस्ट्री. पर इसके बिफोर दैट वी कम टू द अवर पॉइंट. हमारी बुक में जहाँ से बात की गई है, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें जहाँ से बात की गई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने बताया है कि जो ये मुगल एम्पायर था वो इतना वास्ट एम्पायर था, एंड इट हैज द पीपल आल्सो हैविंग द डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी. द किंगडम वाज वेरी लार्ज, बट दैट रूलर वाज सो एफिशिएंट. दे हैव रूल्ड इंडिया very effective way, or they also giving the good heritage culture to us. आज हम जितनी भी बात करते हैं, लाल किले की बात करते हैं, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, जितनी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जिनके हम इंडियन के रिच कल्चर को दो छू करते हैं, that is also created by somewhere the Mughal emperor, ठीक है. Now maybe you understand this topic. Now today start with the first content. Who were the Mughals? ये मुगल कौन थे, है ना. अब हिस्ट्री क्या होती है, रिलेटेड है ना. हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू समवेयर, है ना. तो फर्स्टली जो हु वर द मुगल्स कौन थे, तो उसमें देखो मैंने आपको बात की थी दिल्ली सल्तनत में, आपको रिकॉल करना पड़ेगा मंगोल्स. मैंने आपको बताया था दैट मंगोल इन्वेंशन वाज स्टार्टेड विद द चंगेज खान ना. चंगेज खान के नेतृत्व में भारत में मंगोल आक्रमण हो रहे थे, है ना. तो द पर्सन इज चंगेज खान. इन जो चंगेज खान का हम या चंगेज खान इनका जो नाम मिलता है, इन चंगेज खान जो थे ये बताते हैं कि हिस्ट्री में बताया जाता है कि कहीं ना कहीं मुगल खुद से रिलेटेड थे.
दैट वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज खान फ्रॉम द मदर साइड, मतलब अपनी माता की तरफ से, मतलब उनका जो निहाल था बाबर और इनका जो निहाल था वो कहीं ना कहीं डिसेंडेंट थे, पूर्वज थे किसके, मंगोल आतंककारी जो हमारे यहाँ आया था चंगेज खान के, ठीक है। एंड फ्रॉम द फादर साइड, पापा की तरफ से वो किसका था, तिमूर। तिमूर का नाम आपने नहीं सुना होगा क्योंकि हमने थोड़ा डिस्कस भी नहीं किया था। तिमूर इज आल्सो अ इन्वेडर, बाहर से आया हुआ था, इन्वेडर था। ही डिड कम इन इंडिया इन द पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन शाह तुगलक। नसीरुद्दीन शाह तुगलक के समय पे वो भारत में आया था 1398 में, ठीक है। इन दैट पीरियड ही इन्वेडेड दिल्ली इन अ बेल्ट वे, उसने दिल्ली को बहुत अच्छे से लूटा, यहाँ से बहुत सारा सामान वगैरह ले गया, है ना। तो मदर साइड से वो चंगेज खान के और फादर साइड से तिमूर डायनेस्टी के थे। पर जो बाबर था वो मंगोलों का जो हिस्ट्री में रोल है या जो याद किया जाता है वो एक अच्छे रूप में याद नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा था, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छे से याद नहीं करते थे, है ना। जबकि तिमूर का नाम थोड़े से अच्छे से याद किया जाता था। तो जो मुगल्स थे वो अपने आप को तिमूर डायनेस्टी का कहलाना पसंद करते थे, डिसेंडेंट्स ऑफ द तिमूर्स कहलाना पसंद करते थे, ठीक है। और शॉर्टली अगर आप बात करें हु वर द मुगल, मुगल्स को जनरली मंगोल से ही उत्पत्ति हुआ एक वर्ड है, ठीक है। अब सेकेंड है मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग। मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग मतलब कौन कौन से मुगल्स थे। तो जो मुगल्स भी आपको टू टाइप्स के मिलेंगे, इसमें एक दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, ग्रेट मुगल्स एंड लेटर मुगल्स। तो डोंट बी कंफ्यूज व्हाट इज द लेटर मुगल्स और ग्रेट मुगल्स, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। जो फर्स्ट 6 मुगल्स थे दैट हैव द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री। जो ये 6 रूलर थे, बाबर ही एस्टैब्लिश इन इंडिया मुगल डायनेस्टी, देन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इनका जो पीरियड था 1526 से 1707, है ना, 1707 तक का जो पीरियड था, दैट पीरियड में जो 6 मुगल्स थे दैट मुगल्स वर नोन एज द ग्रेट मुगल्स। एंड देन द सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब, औरंगजेब के बाद के जितने भी सक्सेसर थे, जब तक मुगल पीरियड रहा, लास्ट था कौन था, बहादुर शाह जफर, उस तक के जो मुगल्स थे दैट इज काउंटेड इन द लेटर मुगल्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग। इसमें सबसे बात कर रहे हैं हम बाबर की। बाबर जो था वो अर्ली 1380 एज के अंदर काबुल के पास एक जगह थी फरगना, वहाँ का शासक बना। फिर देन व्हेन ही सा कि मंगोल्स वर क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर हिम इन द काबुल, तो वो ही कम टू इंडिया, उन्होंने उसने भारत की तरफ अपना रुख किया। ऐसा भी कहा जाता है कि सम इंडियंस रूलर्स वर इनवाइटेड, दौलत खान लोधी, सांगा जो राजपूत रूलर थे, राणा सांगा, उनका भी नाम कई बार आता है। तो कई लोगों ने उनको इनवाइट किया कि दे केम इंडिया एंड फाउट विद द इब्राहिम लोधी। जो भी रीजन था, ही केम इन इंडिया, आफ्टर दैट ही फाउट विद द इब्राहिम लोधी इन 1526। ही यूज द गन पाउडर इन द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री, और उसके कारण से ही फिर दैट इज नोन एज द ही एस्टैब्लिश द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब इसका जो इसमें मेन पीरियड्स है वो 1526 है, इन दैट ही फाउट विद द he fought with the Ibrahim Lodi in 1527. He fought with the Rajput ruler Rana Sanga in 1528. He fought with the मारवाड़ रूलर जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसके अंदर ही फॉर्म विद द मालदेव, एंड इन 1526 ही डाइड, है ना, वो पूरा एस्टैब्लिश हुआ और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई, किसकी, बाबर की। फिर बाबर का जो सक्सेसर था वो कौन था, उनका बेटा हुमायूं। तो नेक्स्ट इज द हुमायूं जो था वो 1530 में का राजा बना। ही वॉज देयर वॉज अ रूल ऑफ द सक्सेशन, वहाँ पर ऐसा रूल था सक्सेशन का, आइदर वॉज द रूल वॉज कि जैसे राजा अगर डेथ हो जाती है तो राजा के बाद उसका बड़ा बेटा जो था वो राजा बन जाता है। बट इन दैट मुगल्स में क्या रूल था, फादर की डेथ होने के बाद हिज किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू द हिज सन्स, उसके बाद बच्चों में बांट दी जाती थी। अकॉर्डिंग टू दैट फॉलो करते हुए उसने अपने तीनों भाइयों के अंदर इसने बांटी, पर दैट वाज नॉट सो इफिशिएंट, अच्छे से नहीं था, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। और इन 1540 में व्हाट हैपन, अ न्यू सुर डायनेस्टी का जो रूलर था कौन था, दैट वाज द शेर खान और शेर शाह सूरी, है ना, जो सुर डायनेस्टी का राजा था उसका बीच में एक छोटा सा 15 साल का पीरियड आ जाता है। 1540 में उसने हुमायूं को पराजित किया और 1555 तक उसने इसके ऊपर राज्य किया। उसके बाद में जो इसके सुर डायनेस्टी के जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छे नहीं थे। एंड देन अगेन जो हुमायूं था उसने 1555 में इसी तरह से अपना मुगल साम्राज्य वापस ले लिया, बट आफ्टर द 1 year ही वॉज ऑल्सो डाइड विद द फॉलिंग ऑफ द
लाइब्रेरी स्टेयर्स, है ना, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी डेथ हो गई। तो नेक्स्ट इज हुमायूं's ended आफ्टर द हुमायूं हिज सन वाज मेक द अकबर। अकबर का जो रोल है या अकबर का जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। उसकी जो राजपूत पॉलिसी थी, उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, religious policy, mansabdari system, revenue system, that was so important in Indian history. We will talk about these 4 topics in the next video. ठीक है, इन 4 पे हम मेनली बात करेंगे। नेक्स्ट जहांगीर। जहांगीर जो था वो दैट वाज द सन ऑफ द अकबर, और अकबर के जो सन था उसने इनका जो मेनली रोल है वो यही था कि ही आल्सो ट्राई टू मेक विद द गुड रिलेशनशिप विद द अदर स्टेट्स। लाइक राजपूत जो रूलर थे जो अभी तक हमारे साथ में नहीं आए थे, वो अकबर के टाइम पे जो हमारे साथ में आए और वो जहांगीर के टाइम पे भी हमारे साथ में जुड़े रहे। ही वॉज आल्सो अ वेरी गुड, ही आल्सो फॉलो द पॉलिसीज विच इज अडॉप्टेड बाय द अकबर, है ना। अकबर के बाद में, जहांगीर के बाद में जो उसका बेटा शासक बना शाहजहां। शाहजहां का जो रोल है, इस पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट। जितने भी मोस्टली हम बात करते हैं ताजमहल, ग्रेट फोर्ट, है ना, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है दैट इज क्रिएटेड बाय या बनाए गए थे, वो किसके द्वारा बनाए थे? शाहजहां के। तो हिज पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द आर्किटेक्ट। नेक्स्ट जो लास्ट रूलर था वो थे औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो शाहजहां का 3rd नंबर का बेटा था। मैंने आपको बताया था जैसे जो सक्सेशन था उसमें यही था कि डिवाइड हो जाता था, पर ही डजंट वांट टू, जो शाहजहां था वो अपने फर्स्ट पुत्र जो ज़्यादा शुक्र था उसी को राजा बनाना चाहता था, है ना। तो इस इनके अंदर भी आप बहुत सारा जो आपस में युद्ध वगैरह हुए और उसके बाद औरंगजेब राजा बना। औरंगजेब की जो पॉलिसी थी दैट वाज द डिफरेंट पॉलिसीज फ्रॉम द अदर रूलर्स। जहाँ अकबर बहुत रिलीजियस पॉलिसी में अदर रिलीजियस को रिस्पेक्ट दे रहा था, वहीं ये जो थे वो कट्टर थे। ही वॉज नॉट गिविंग द एज लिबर्टी टू द अदर रिलीजन एज अदर्स वर गिविंग। तो औरंगजेब का जो रूल था वो इसीलिए 1707 के बाद में और धीरे धीरे जो मुगल डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि एक तो एम्पायर बहुत लास्ट बड़ा हो गया था और जो सक्सेसफुल थे दैट वाज नॉट सो efficient। ठीक है, तो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर इन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस द मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग। In next video we will discuss the different type of the policies, mansabdar, zabt, zamindar, the new words is coming, we will talk in next video. I hope you understand. Thank you all.